یہ غور فرمائیے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر شریف ابھی صرف 4 سے 7 دن کی ہوگی، یعنی 1 ہفتے کی عمر شریف لے لیں۔ اس درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس طریقے سے معجزے کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی ادھر ولادت ہوئی، ادھر یہ ہوا کہ یمن کی سرزمین پر ایک میاں بیوی کا جوڑا ہے، ان کی بچی جو ہے وہ زبان سے گونگی ہے، اس کی بولی نہیں نکلتی، وہ بات نہیں کر سکتی، اس کے پورے جسم پر پھالج ہیں، ہاتھ پیر اس کے کام نہیں کرتی، وہ اندھی بھی ہے، اور روزانہ اس کے ماں باپ جو ان کا اپنا بت تھا اس کو سامنے رکھ کر کے فریاد کرتے تھے کہ کسی طریقے سے جو ہے ہماری بچی کو شفا دے دو، شفا دے دو۔ ظاہر سی بات ہے، جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتا تو وہ کسی کو شفا کیا دے سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، جو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں وہ کسی کو شفا کیا دے سکتا ہے۔ ایسے میں اچانک ایک دن وہ زمین پر گر پڑتا ہے اور آواز آتی ہے کہ ہم سے کیا مانگتے ہو؟ اب تو وہ آ گیا ہے، اب تو وہ آیا ہے کہ جس کی آمد سے ان سب معبودان باطل کی پرستش ختم ہو جائے گی، نغمہ توحید جو ہے وہ جاری ہوگا۔ اگر کچھ طلب کرنا ہے تو اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں طلب کرو۔ اور پھر یہی ہوا، ابھی ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں اللہ اکبر، ان لوگوں نے، دونوں میاں بیوی نے کہا کہ واقعی اگر ایسا ہے تو جس کی ولادت کا ذکر کیا جا رہا ہے اسی کے صدقے میں ہماری بچی کو شفا مل جائے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، دونوں میاں بیوی چھت پر بیٹھ کر کے یہ گفتگو کر رہے تھے، ایسے عالم کے اندر بچی اوپر کو چڑھ کر کے آ گئی۔ کہا ارے تجھے یہ کیسے شفا ملی؟ تو کہا کہ ایک آنے والا آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ تیرے ماں باپ جو ہے میرے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، تو جو ہے وہ، اور پھر اس نے اپنا ہاتھ جو ہے میرے جسم پر مس کیا اور پھر اللہ نے مجھے شفا عطا کر دیا۔ تو کہا، میں نے پوچھا کہ آپ کون ہے؟ تو کہا مکے میں میری ولادت ہوئی ہے اور میں مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوا ہوں۔ ایسے عالم کے اندر یہ حضرات جو ہیں اپنے وطن سے مکۃ المکرمہ گئے اور جب وہاں پہنچے تو سرکار آمنہ سے کہا کہ کیا آپ اپنے نومولود کی ہمیں زیارت کرا سکتی ہیں؟ سرکار آمنہ نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو کہا کہ تمہارے اس شہزادے کی وجہ سے میری بیٹی کو شفا مل گئی ہے۔ اور اس کے بعد جب باتیں بتائی اور ساری چیزیں رکھی تو سرکار آمنہ نے اجازت دی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام اس وقت جھولے میں تھے انہوں نے زیارت کی اور کہتے خدا کی عزت کی قسم اتنا حسن اور ایسی خوبصورتی ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر کہنے لگے کہ ہم ان کی رسالت کی اور نبوت کی گواہی دیتے ہیں جس کے صدقے میں اللہ نے ہماری بیٹی کو شفا عطا فرمایا۔ اندازہ فرمائیے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں؟ پھر حضرت آمنہ نے کہا جلدی سے چلے جاؤ کیونکہ میرے جو سسر ہے انہوں نے کسی سے بھی یہاں ان کو آنے کی اجازت کے لیے منع فرمایا ہے۔ وہ گئے اور جانے کے بعد کہا یا اللہ ہمیں صبر نہیں ہوتا کہ جو حسن اور جو جمال ہم نے دیکھا ہے وہ حسن اور جمال ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا، ایک مرتبہ پھر دیکھنے کی اجازت دے دو۔ اب تک تو چہرہ دیکھا تھا، تلوہ نہیں دیکھ سکے تھے، لیکن سیرت نگار لکھتے ہیں، اہل سنت کی مستند اور معتبر کتابوں میں ہمارے بزرگوں نے لکھا، بالخصوص حضرت مولانا فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر ان لوگوں نے حضور کا چہرہ دیکھ کر کے جب تڑپ ہوئی، جب دوبارہ انہوں نے کہا کہ ایک جھلک اور دیکھنے دو، جب حضور علیہ السلام کے معصوم تلوے پر نظر پڑی ہے تو حسن کا عالم یہ تھا کہ اس حسن کی تاب نہ لا کر کے وہ وہیں پر انتقال کر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معصوم بچپن ہے۔ اللہ اکبر۔ 7 دن کے بعد چند دنوں تک حضرت صہیبہ آپ کو دودھ پلاتی ہے، پھر حضرت صہیبہ کے بعد یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آتی ہے۔
हज़रत हलीमा सादिया ने किस तरीके से दूध पिलाने का शरफ हासिल किया। मैं थोड़ा सा, आप नाराज नहीं होंगे तो मैं कुछ आपकी मर्जी से हट के बात करूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई दाई रसूलुल्लाह को लेकर के नहीं गई, और हुजूर का खानदान इतना गरीब था, इतना मुफलिस था कि कोई दाई हुजूर को लेकर नहीं। ये सब गलत बात है। देखो, ये किसी ने भी लिखा है, ये गलत बात है। मैं कोई मुहक्किक नहीं हूं, तालिबे इल्म हूं, लेकिन ये बातें हजम होने की नहीं है। इसलिए कि एक है रिवायत और एक है दिरायत। जब हम रिवायत को दिरायत पर परखते हैं तो ये सिवाय देवमाला कहानियों के और कुछ नहीं रह जाती। और पता नहीं लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, रसूलुल्लाह का खानदान पूरे मक्के में सबसे मालदार खानदान था। ये कोई बात नहीं है कि वो गरीब थे, मुफलिस थे। मैं इतना कहूं, जब जो लोग नबी के खानदान को गरीब और मुफलिसी का ताना दे के मजबूर, बेकस और बेबस पता नहीं क्या क्या साबित करना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो इस बात को मानते हैं कि रसूलुल्लाह के दादा अब्बू सरकार अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली थे। आप मुझे बताएं कि किसी गरीब और मुफलिस को मुंबई के लोग मस्जिद का मुतवल्ली नहीं बनाते, तो लोग जो है वो किसी गरीब और मुफलिस को काबे का मुतवल्ली क्या बनाएंगे। इतनी तरक्की याफ्ता दौर के बाद जब ये हालात हैं, फिर दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं, फिर वही लोग जो नबी के माँ बाप को, घर वालों को गरीब मुफलिस क्या क्या कहते हैं, फिर वो ये भी कहते हैं कि रसूलुल्लाह के अब्बा जान का विसाल किस सफर में हुआ। मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं, हुजूर के अब्बा जान ताजिर थे, उनका सफर तिजारत में विसाल हुआ। तो मुझे बताएं, क्या ताजिर गरीब होते हैं? आज का ताजिर गरीब नहीं होता तो रसूलुल्लाह के अब्बा और तिजारत के लिए किधर जा रहे थे? मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने नहीं, मक्के से मुल्क शाम जा रहे थे। तो जो दुनिया के दूसरे ममालिक में जाके तिजारत करता हो, क्या वो शख्स गरीब होगा? ये भी कहते कि तिजारत के रास्ते में विसाल हुआ, फिर ये भी कि वो लोग गरीब थे। तीसरी चीज, जब ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह का कि जब विलादत हुई तो काबतुल्लाह पर जो हमला किया था अबरहा ने, और हुजूर की विलादत में सिर्फ 55 दिन का फासला है। 55 दिन यानी 2 महीने से भी कम बनते हैं। 2 महीने में 60 दिन होते हैं, लेकिन 2 महीने से कम बनते 55 दिन। तब मुझे बताएं, ये वाकया भी सबने बयान किया है क्या कि जो है वो अबरहा जो जानवर उठा करके ले गया था हजारों की तादाद में, वो जानवर मक्के के किसी और के नहीं थे, वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के थे। तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घोड़े, अपनी बकरियां, अपने ऊंट उससे लेने के लिए गए थे। तो 55 दिन पहले जिसके पास हजारों ऊंट हो, हजारों बकरियां हो, हजारों घोड़े हो, और वो अबरहा से वापस लेने के लिए गए, तो 55 दिन में कौन सी सुनामी आ गई थी, 55 दिन में कौन सा जलजला आ गया था कि 55 दिन पहले जो अबरहा 2-4 बकरियां तो नहीं ले गया होगा उठा के, वो भी तो बादशाह था। उसकी फौज हजारों की तादाद में, भाई कम से कम सैकड़ों की तादाद में ले गई होगी। तो मुझे बताएं, 55 दिन पहले जो इतने घोड़े और बकरियां रखता हो, अचानक 55 दिन के अंदर कितनी गुर्बत आ गई थी कि माअज़ल्लाह कोई रसूलुल्लाह को ले जाने तैयार ही नहीं था। इसीलिए अल्लामा निजामी कहते थे कि जालिम बोलता है, वो नाम लेके बोलते थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जालिम बोलता है मगर समझता नहीं। ये भी लिख रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं कि वो इतने घोड़े और वो रखते थे। अब मैं आपको बताऊं, जिस दिन रसूलुल्लाह की विलादत हुई है, अकीके में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दर्जनों जानवर ज़बह किए हैं। और कमोबेश मुहक्किकीन की तहकीक के मुताबिक उस दौर में आज से 1501 साल पहले कमोबेश 1000 मक्के के लोगों को अब्दुल मुत्तलिब ने सिर्फ अकीके में जमा किया है। ये रसूलुल्लाह की सीरत का बाब है। अब उसके बाद फिर ये क्या हुआ, ये कहना कि कोई लेके नहीं गया, बिल्कुल बात हजम नहीं होती। किसी ने भी लिखा, माजरत के साथ, हम ये नहीं कह रहे कि झूठ है, गलत है, ये है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें हजम, दिरायत इसकी तायीद नहीं करती। बल्कि सुने, जो भी दाई आई सबसे पहले वो रसूलुल्लाह के घर आई। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए, उस दौर में जितने भी हाजी आते थे,
तमाम हज के अय्याम में जिसके घर से हाजियों को खाना खिलाया जाता था वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दस्तरखान था, वो रसूलुल्लाह के दादा का दस्तरखान था। ये पता नहीं कौन सी साजिश का हम शिकार हो गए भाई कि नबी को गरीब, उनके घराने को मुफलिस और क्या क्या करके साबित करो ताकि जालिमों को मौका मिले ये कहने का कि माज़अल्लाह उन पर तो नबूवत नहीं आई थी, उन लोगों ने तो माल के लिए ढोंग रचाया था। जैसे कि वाक़े करबला के बाद यजीद बदबख्त ने ये बात की। कहीं ये यजीदियों की साजिश तो नहीं, कहीं ये मरवानियों की साजिश तो नहीं कि लाशऊरी तौर पर हमारी कौम उस तरफ चल पड़ी है। मेरे भाई, जिसके घर में लाखों हाजियों को 5-6 दिन का खाना खिलाया जाता हो जिसके घर से, वो कैसे मुफलिस हो सकते हैं? हाँ, ये जरूर है कि हर एक के हालात में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन नबी का घर सबसे बड़ा मालदार था। पूरे अरब में नबी के घर से बड़ा मालदार किसी का घर नहीं था। एक बात मैं आपको सबूत के तौर पे बताऊं, नबी के दादा के अब्बा को हाशिम कहते हैं। हाशिम नाम नहीं है, हाशिम लक़ब है। हाशिम क्यों कहते हैं पता है? हाशिम का मतलब होता है रोटी को सालन में चूरने वाला। जब मक्के में कहत साली हुई तो मुल्क के शाम से आटा और अनाज लाकर जिसने पूरे मक्के को कई महीनों तक अपने घर पे बिठा करके खिलाया, वो नबी का परदादा हजरत हाशिम है। हाशिम भी कहते हो, फिर मुफलिस भी कहते हो, हाशिम भी कहते हो, फिर गरीब भी कहते हो। भाई जो जिसके, और ये भी सुन लीजिए, कल भी उनके टुकड़ों पर जमाना पलता था और आज भी उनके टुकड़ों पर जमाना पलता है। मेरे इमाम कहते हैं, आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं ये कह रहा हूं, मानता हूं कि हालात में उतार चढ़ाव होता रहता है। नबी के अब्बा ताजिर हैं, नबी के नाना ताजिर हैं, नबी के दादा ताजिर हैं। तो ये बात याद रखिए। मैं बीच में बात आ गई तो मैं अर्ज करने लगा, टाइम की किल्लत भी है। हर दाई हुजूर के घर आई, हर दाई हुजूर, पहले हुजूर ही के घर आई, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी दाई का दूध नहीं पिया। हुजूर ने मुंह फेर लिया, किसी दाई का दूध नहीं पिया। क्यों? इसलिए कि जब हजरत मूसा मुंह फेर लेते हैं तो ये तो जाने मूसा है ना, है? ये जाने मूसा है। आप कुरान उठा करके देखें, पूरी तफसील उसमें मौजूद है। हजरत मूसा अलैहि सलाम के दूध पीने वगैरह का वो पूरा वाकया मौजूद है। उसकी तरफ जाएंगे तो बात, अभी हमारे पास टाइम इतना नहीं है। तो सारी दाइयां पहले यहां हाजिरी दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने किसी को दिया नहीं और उनको रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। लेकिन जिसकी सवारी थकी थकाई थी और जो सबसे आखिरी में आई, इसका मतलब हुजूर की पहले दिन से ये आदत है, जिसको सब ठुकरा दें, लगाते हैं उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मेरे इमाम सैयदी आला हजरत ने फरमाया कि नबी के बारे में इस तरह ना किया करो कि वो मुफलिस खानदान के थे और गरीब थे और मुफलिस, ये सारी बातें ना की जाए। हम तो नबी को कभी गरीब मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए कि मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो बाद में हलीमा आई सबसे आखिर में, और आप तफसील सुन चुके हैं, बार बार आपने सुना होगा कि हलीमा जो थी उनकी सवारी चलने के काबिल नहीं थी, उसी वजह से वो ताखीर से पहुंची और सारे बच्चे दाइयां उठा चुकी थी। अब ऐसे में जब हलीमा आई तो वो भी पहले हुजूर ही के दरवाजे पर आई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा अब्बा ने पूछा कि तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम हलीमा है और मैं कबीले बनु साद से हूं और मैं ज़ुएब की बेटी हूं, तो मैं हलीमा हिल्म से, बनु साद सआदत से, तो ये सआदत तेरे मुकद्दर में आई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे कि आप हमसे बेहतर उलमाए कराम के ज़ुबान से बयान को समाअत कर रहे थे, मैं आपका मेहरबान कारी नूर आलम। अगर इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा
اور ایک دوسرے مسلمان بھائیوں تک شیئر بھی کر لیجیے گا۔ کیا آپ کو معلوم اور پتہ ہے کہ 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول شریف تک کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ سب آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا؟ تو سید صاحب نے بہت ہی بہترین اندازے میں آپ کو اس بیان کو سنا دیے۔ تمام سنی مسلمان بھائیوں تک شیئر بھی کر لیجیے گا اور ایک دوسرے تک عطیہ بھی کر لیجیے گا۔ تو میں آپ کا مہربان قاری نور عالم، خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔